So first of all, why has he chosen pea plants? Like I told you, pea plants were short term plants. 2-3 months में ही प्रोडक्ट यानी 2-3 months में ही कंप्लीट प्लांट ग्रो हो जाता था और उससे जो भी एक्सपेरिमेंट उसे कंडक्ट करना था वो इजीली हो जाता था. Secondly, pea plant was having clear distinguishing features. That means अगर वो हाइट की बात करे या हाइट फीचर को उसने कंसीडर किया तो इजीली शॉर्ट और टॉल प्लांट में इजीली वो डिस्क्रिमिनेट कर पाता है. Secondly, like flower color उसने चूज किया था. There was clear discrimination between purple and white flowers. तो pea plant के दो तरह के flowers होते हैं, purple and white. Similarly, seed color, green or yellow, or seed shape, round or wrinkled. So there were many factors for which he has chosen pea plant. First, like I told you, it's a short-term plant. Secondly, this plant is having discriminating features which get easily be assessed. So by using pea plant, he has conducted several experiments. Out of this, let's discuss first, which was monohybrid cross. Mono means single. Hybrid means trait or variety. So he has done experiment choosing two plants based on the single quality difference. That means like he has chosen two plants which were different in height only, like short and tall plant. And what is the meaning of cross here? Cross means fertilization. So Mendel selected pea plants having one pair of character, a tall pea plant and a short pea plant. He selected pure tall and pure short pea plants and cross pollinated them. उसने दो प्लांट्स चूज किए, एक शॉर्ट और एक टॉल, और फिर उनमें क्या करवाया? पॉलिनेशन यानी फर्टिलाइजेशन. Then what he obtained all tall plants in the first generation, यानी first filial generation में उसे कैसे plants मिले? सभी tall plants मिले. And when the first generation plants were self-pollinated, he obtained tall and dwarf plants in the ratio 3:1 in the second generation. और इस second generation में कैसे plants मिले? टॉल भी मिले और ड्वार्फ भी मिले 3:1 की रेशियो में. एंड द रेशियो ऑफ प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल एंड प्योर ड्वार्फ वाज इन द रेशियो, यानी जो उनका जीनोटिपिक रेशियो था वो था 1:2:1. So the trait that is expressed in the F1 generation is called the dominant trait, and the trait that is suppressed in the F1 is called the recessive trait. तो उसने क्या कंक्लूड किया अपने एक्सपेरिमेंट से? उसने ये कंक्लूड किया कि जो ट्रेट F1 में एक्सप्रेस हुई, यानी जो ट्रेट F1 जनरेशन में नजर आई, वो कौन सी ट्रेट थी? डोमिनेंट. और जो ट्रेट सप्रेस हो गई यानी दब गई, जो अपना फीचर नहीं शो कर पाई, वो कैसी ट्रेट थी? रिसेसिव. Okay, let's just continue with it by showing an annotation. I'll show you this cross again. Now this was taken by the Mendel. He has taken tall plant, pure tall and short plant. Look at here carefully. I have denoted here tall plant with capital letters, capital T for tall character and small t for short character. तो इसने इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया. Now first of all, what kind of gametes it will be having? देखिए कैसे gametes होंगे. कैपिटल T एंड कैपिटल T, एक मदर से गैमेट आया, एक फादर से. तो यहाँ पर इस वाले पेरेंट का गैमेट कैसे होंगे? स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. नाउ व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस इट विल हैव? कैसे कैसे फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस है? सो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी? हो सकता है फर्स्ट वाला गैमेट फ्यूज करे इस गैमेट से, स्मॉल वाले से. व्हाट कॉम्बिनेशन वुड बी लाइक दिस? सेकंड मे बी लाइक दिस. क्या हो सकता है? ये वाला फर्स्ट वाला फ्यूज करे सेकंड गैमेट के साथ, या हो सकता है इसका सेकंड गैमेट उसके भी सेकंड गैमेट के साथ फ्यूज करे. So there will be 4 combinations like this.
Now what will be the result? Now what will be the result? यहाँ पर कैसा होगा? Capital T, small t. And what about here? It will be again like this. And again here it will be like this. So these will be the combinations. Now what? This is what? Genotype. अब याद है मैंने बात की थी genotype. That means the genetic makeup. तो ये कैसा genotype हो गया? एक डोमिनेंट है तो दूसरा रिसेसिव, यानी हेट्रोजाइगस. हेट्रो अलग अलग, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, हेट्रोजाइगस. ठीक है. अब ये सारे इनका फिनोटाइप क्या होगा? व्हाट विल बी द फिनोटाइप? दे विल बी ऑल टॉल. टॉल होंगे ना. यहाँ पर देखिए सारे ध्यान से, एक डोमिनेंट है, डोमिनेंट कैरेक्टर होते हुए रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं करेगा. तो ये सारे जितने भी रिजल्टेंट प्लांट्स आए वो सारे कैसे होंगे? ऑल टॉल. तो ये F1 जनरेशन कैसी है? सारे टॉल. अब मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूड किया था कि जो भी ट्रेट F1 में आया था वो क्या थे? वो सारे टॉल थे. यानी वो कौन सा कैरेक्टर हो गया? डोमिनेंट. जो F1 में शो होता है वो डोमिनेंट होता है ना. उसने क्या किया था? ही हैज कंडक्टेड सेकंड क्रॉस. अब उसने क्या किया? ही हैज डन अनदर एक्सपेरिमेंट. उसने क्या किया? इन दो प्लांट्स को ले लिया, दिस वन एंड दिस वन, कोई भी दो ले लिए चारों में से. लेट्स से फर्स्ट टू ले लिए. ठीक है. अब अगेन व्हाट काइंड ऑफ गैमेट्स इट विल बी हाई गिविंग? अब इसके कौन से गैमेट्स होंगे? नाउ अगेन फोर काइंड ऑफ गैमेट्स विल बी देयर. दिस वन फर्स्ट वाले के, एंड दिस वन सेकंड वाले के. इसी तरीके से कैपिटल T एंड स्मॉल t. नाउ दिस विल बी द गैमेट्स ऑफ फर्स्ट वाले के, एक कैपिटल एक स्मॉल. देखिए अलग अलग हो जाएंगे अगर गैमेट्स की बात करें. इसी तरीके से सेकंड वाले के. नाउ व्हाट विल बी द कॉम्बिनेशन? जैसे ऊपर कॉम्बिनेशंस, तो इसी तरीके से यहाँ भी कॉम्बिनेशंस होंगे. ओके. नाउ फर्स्ट may fuse with the first of second parent, or it may fuse with the this or the second gamete of this. May fuse with the first gamete of second parent, or it may fuse with this one. Okay, so there will be four combinations. ठीक है ना. what will be the genotype again? अब इनके genotype क्या होगा? Here first of all it will be कैपिटल T कैपिटल T. देखिए यहाँ पर ध्यान से देखती जाइए कैसे कैसे कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं. यहाँ पर कैसा होगा? कैपिटल T स्मॉल t. यहाँ पर कैसा होगा? अगेन कैपिटल T स्मॉल t. और लास्ट में यहाँ पर it will be स्मॉल t स्मॉल t. so there will be the combination. देख रहे हैं आप ध्यान से. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए फिर से, look at here carefully. what kind of phenotype it fell? ये कैसा प्लांट दिखेगा? दोनों ही डोमिनेंट है, दोनों ही टॉल वाले हैं. तो कौन सा प्लांट होगा ये? ऑब्वियसली टॉल. दिस वन again tall, this one again tall, and the last would be short. लास्ट वाला कैसा होगा? short plant. yes or no? now what is the resultant? अब कैसा जीनोटाइप नजर आया? जीनोटाइप देखिए ध्यान से. जीनोटाइप, जीनोटाइप यानी जीन मेकअप. देखिए कैसा कैसा जीन है. एक है
होमोजाइगस डोमिनेंट, होमो यानी एक जैसा डोमिनेंट है, ये कैसा है हेट्रोजाइगस, ये भी हेट्रोजाइगस, ये होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, फिनोटाइप की बात करते हैं पहले। कैसा फिनोटाइप है देखिए, 3 टॉल 1 शॉर्ट, तो कैसी रेशो मिली थी 3:1। अब हम जीनोटाइप की बात करते हैं। जीनोटाइप की रेशो देखिए कैसी है, एक तो है कैपिटल टी, फिर दो है कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर एक है स्मॉल टी। देख रहे जीनोटाइप की रेशो 1:2:1 एंड फिनोटाइप की 3:1। ठीक है, तो इस सब से, इन सब एक्सपेरिमेंट से उसने क्या कंक्लूड किया, ही हैज कंक्लूडेड कि जो भी कैरेक्टर F1 जनरेशन में नजर आता है उसे हम डोमिनेंट कैरेक्टर का नाम देते हैं, और जो कैरेक्टर आपका F1 में शो नहीं होता उसे हम रिसेसिव का नाम देते हैं। ठीक है, और जब उसने F1 को दोबारा से क्रॉस करवाया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाई, तो उसे क्या नजर आया, जो F2 जनरेशन थी उसमें जीनोटाइप का रेशो था 1:2:1 और फिनोटाइप का 3:1। यानी रिसेसिव तभी एक्सप्रेस करता है जब उसके साथ एक और रिसेसिव हो या डोमिनेंट आसपास ना हो। सो दिस वाज द rule he has given regarding expression of genes. Thank you. This is first of the gene we will discuss next in next video.